Good morning, student. Good morning, sir. Sir. Morning, sir. Good morning, sir. Very good morning Good to all. morning, Good sir. morning, sir. Okay. Anyone have any idea about the last lecture? Sir, applications of double and triple integral. Start here. Okay. So in last lecture we have discussed the new topic. It is the area and volume of the region. Okay, means how to find the area and volume by using the double and triple integration. We already discussed the theoretical part for that, and it is the application of multiple integration. So in last lecture we have started that topic and we continue that topic in today's session with the examples. Okay, so we go with that. So you can see in my screen. Yes, is it visible to all, everybody? Yes, sir. Yes. Okay. So in last lecture we have discussed all these fundamentals for that. Okay, I repeat it. If you want to find the area of the region by using the double integration, then you have three formulas: number one, number two, and number three. Okay. For but in that, if you want to go with the vertical strip, then you can use the formula number one, that is a is equal to integration a to c, means limits of x, and inside is limits of y dy dx, and integrand will be 1. That is the formula number one. If you go with the horizontal strip, then the formula for that is a is equal to integration limits of y integration limits of x 1 into dx dy. That is the formula number 2 to find the area. And if you want to find the area and volume for the polar curves, okay, then you have the formula a is equal to theta 1 to theta 2 r1 to r2 r dr d theta. These are the formulas for the area to find the area. Now for volume we have two options. If you want to go with the triple integration, then the formula will be triple integration over v dv, integrand must be 1, and you can select your order of the integration as per your requirement. Means if you go with the dx dz, then you can go with that, and if you select dy dx dz, then you also go with that. If you go with dz dy dx, then it is also correct. Means there are many orders for that dv. Okay, and if you want to find the volume by using cylindrical coordinates, then your integration your formula will be triple integration r dr d theta dz. And if you go with the spherical coordinates, then your formula will be triple integration over v r square sin theta dr d theta d phi. Why? This is the Jacobian for the spherical coordinates, and this is the this is the Jacobian for the cylindrical coordinates. Then the formula will be these two formulas are also that. Then in second case, means case number 2 or formula number 2, if you want to go with the double integration, then you have to put here the value of z. That means double integration over z dx dy, or you can also say that it is the function of x and y, so double integration over f of xy, and you can select your order also, so means dy dx or dx dy. And if you go with the polar coordinates, so v is equal to double integration over z into r into dr d theta. So is there any doubt in the theoretical part, anybody? No No, doubt, sir. sir. No. Okay, then we go for the first example. You can see to find the area of the region that lies inside the cardioid, r is equal to 1 plus cos theta, and the outside the circle r is equal to 1. यहाँ पे word लिखा होना चाहिए outside. Okay, means area सर्कल के बाहर लेकिन कार्डोइड के अंदर, ऐसा हमको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो द फिगर इज, क्योंकि यहाँ फिगर से ही हमको जाना पड़ेगा. तो दिस इज योर थीटा इज इक्वल टू 0 पाई बाई 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2. ओके, सो दिस इज योर थीटा. नाउ आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा. तो हम आपको पता होना चाहिए प्लस कॉस थीटा है तो पॉजिटिव साइड पे आएगा. यस और नो? Yes, sir. ओके, और दूसरा
सर्कल है r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 सर्कल मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उसका सेंटर 0 0 होगा। सो r इज इक्वल टू 1 अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से आएगा, ये जो है वो सर्कल इस हिसाब से आपके साथ ऐसे जाएगा। यस और नो एवरीबॉडी? Yes. है ना? तो यहाँ पे दिस इज योर गिवन रीजन मीन्स आउटसाइड द सर्कल एंड द इनसाइड द कार्डोइड r is equal to 1 plus cos theta. So this is your r is equal to 1 plus cos theta and this is your r is equal to 1 circle. Okay, now for the limits of r we have to draw a radius vector. तो यहाँ पे अगर आप रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज योर रेडियस वेक्टर। ओके, सो व्हाट इज द लिमिट्स ऑफ r हियर फ्रॉम द रेडियस वेक्टर? क्या होगा लिमिट्स ऑफ? 1 to r equals to 1 plus cos theta. Very good, very good. And what is the value of theta? So you can use the symmetricity also, है ना? थीटा के लिए भी आप सिमेट्रिसिटी यूज करें, मींस आप इतना ही पहले कंसीडर करें तो आपका वैल्यू हो जाएगा 0 to π/2, उसको 2 टाइम्स कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? Yes sir. है ना? सो यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे वी वांट टू फाइंड द एरिया of the region that lies inside the cardioid r is equal to 1 plus cos theta and the circle r is equal to 1. तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? दैट इज द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? एनीबॉडी? r d या d थीटा वाली। वेरी गुड, दैट इज थर्ड फॉर्मूला, है ना? r dr d थीटा। तो r की पहले लिमिट यहाँ पे मेंशन करेंगे तो 1 to 1 plus cos थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा मींस लिमिट्स ऑफ थीटा के लिए हमने 2 टाइम्स सोचा था तो 2 टाइम्स कर दिया एंड यहाँ पे 0 to π/2 आ जाएगा। गॉट इट? ओके, यहाँ पे हम सिमेट्रिसिटी के अलावा दूसरा कुछ यूज नहीं कर सकते, है ना? उसके लिए फिर आपको 3π/2 to π/2 लेंगे, लेकिन 3π/2 π/2 में एक प्रॉब्लम ये है कि ये साइड भी कंसीडर हो जाएगा, है ना? इसलिए सर सिमेट्रिसिटी वाला फिर से रिपीट करेंगे आप? सॉरी ये सिमेट्रिसिटी वाला आप फिर से रिपीट करेंगे? सिमेट्रिसिटी में कुछ नहीं बेटा, सिमेट्रिसिटी में मींस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अगर मैं एरिया कंसीडर कर रहा हूँ, रीजन कंसीडर कर रहा हूँ तो सेम एरिया या सेम रीजन नीचे भी है ना, कॉपी पेस्ट ऐसा ही है कि नहीं? यस सर। है ना? तो इसको सिमेट्रिसिटी बोलते हैं। मींस अगर हम अपने पूरे ऊपर हेड से नीचे तक अगर आपको काट दिया जाएगा तो दोनों साइड पे सब कुछ सेम ही होगा ना? यस सर। है ना? तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। मींस यहाँ पे जो रीजन दिख रहा है वही का वही नीचे भी रीजन है, तो यहाँ पे वी कैन से दैट वी कैन यूज द सिमेट्रिसिटी। जब सिमेट्रिसिटी यूज करते हैं तो अगर दोनों सेम है तो आप किसी एक को कंसीडर करके या फिर किसी एक को कॉन्सेंट्रेट करके दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स करके मिल जाएगा। गॉट इट? यस सर। है ना? तो वही हमने यूज किया। देखो 2 टाइम्स किया, 0 to π/2 किया मैंने, 0 to π/2 मींस ऊपर वाला कंसीडर किया तो सेकंड के लिए मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नथिंग एल्स। ओके, डन? अंडरस्टैंड? यस। ओके, अब r का तो आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू r²/2 और यहाँ पे लिमिट होगा 1 to 1 plus cos थीटा और यहाँ पे d थीटा हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 विल बी कैंसिल आउट, सो वी हैव यहाँ पे 0 to π/2, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 plus cos थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी 1 छूट गया, -1 आएगा ना,
माइनस आर की जगह पे 1 रिप्लेस करना था तो -1 और यहाँ पे डी थीटा। अब नेक्स्ट में क्या करूंगा मैं, सबसे पहले उसको ओपन कर दूंगा। सो 0 to π/2 यहाँ पे होगा 1 + 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 into d theta। so 1 will be cancel out and यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट मुझे मिलेगा 0 to π/2 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा into d theta। yes or no everybody? Yes, sir. ओके Yes, अब यहाँ हाँ यहाँ पे सिर्फ मुझे एक काम पहले करना पड़ेगा कि आई कैन नॉट फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा डायरेक्टली। फॉर दैट वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। so from that cos स्क्वायर थीटा is equal to cos 2 थीटा plus 1 divided by 2। we can substitute that, yes or no? Yes, sir. सो यहाँ पे आपको मिलेगा cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा, क्योंकि हम cos स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसीलिए। सो यहाँ पे 0 to π/2 यहाँ पे 2 cos थीटा। ओके चलो अब सीधा इंटीग्रेशन करते हैं, कर पाएंगे ना अब तो एवरीबॉडी? Yes, sir. है ना, तो 2 cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा प्लस cos 2 थीटा का होगा sin 2 थीटा बाई 2 तो था ही, दूसरा 2 आया दैट मीन्स 2 into 2 हो जाएगा प्लस 1/2 तो था वहाँ पे इंटू थीटा हो जाएगा एंड 0 to π/2। नाउ नेक्स्ट स्टेप, पहले π/2 को एंटर करो। सो 2 into sin π/2 प्लस sin 2 into π/2 डिवाइड बाय 4 प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू π/2 माइनस 0 के लिए ट्राई करते हैं तो 2 sin 0 माइनस sin 0/4 माइनस 0। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेनी ऑफ द टर्म्स विल बी 0। यहाँ पे देखो 2 कैंसल होके sin पाई आएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin पाई? 0 है ना, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे तो नहीं 0, ये sin 0 मीन्स 0, sin 0 मीन्स 0, ये तो 0 था ही। तो वी हैव ओनली 2 टर्म्स, 2 इंटू sin π/2। sin π/2 की वैल्यू क्या आएगी? 1 1 2 plus π/4। हाँ तो 2 आएगा है ना, तो यहाँ पे 2 हो गया प्लस 1/2 इंटू π/2 तो क्या आएगा? 5/4 4। okay so 2 plus π/4 is required area of the given region. So is there any doubt in this example? Anybody? No doubt, sir. No, sir, no doubt. Okay, so next example you can see in your screen. So find the area between the parabolas y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay। तो सबसे पहले अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पे चलो मुझे बताओ कि y square is equal to 4ax कहाँ पे आएगा? first and fourth part। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट ट्रू एवरीबॉडी? यस और नो? Yes, sir. है ना, तो ये हुआ आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वेरी गुड। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वेर इज इट? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट Second, एंड second. सेकंड। ओके, वो कैसे फाइंड आउट करके बोल दिया पता है सबको, या फिर ऐसे ही बोल रहे हो? देखो उसको जल्दी फाइंड करने के लिए, जल्दी रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो x ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो x ऑलवेज पॉजिटिव कहाँ पे है? फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो वो वहीं पे पैराबोला हो जाएगा। सेम वे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पे y ऑलवेज पॉजिटिव है तो y कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा? फर्स्ट एंड सेकंड में। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड?
Yes, sir. sir. Yes. है ना। तो इस हिसाब से आप जल्दी से उसको ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज अवर गिवन कॉमन रीजन, ओके, बिटवीन द पैराबोलाज वाला। ओके, नाउ इसमें आपके पास दो रास्ते हैं, कौन कौन से? आइदर यू कैन गो विद द dy dx एंड यू कैन गो विद द dx dy, ओके, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। आई गो विद द वर्टिकल स्ट्रिप, तो वर्टिकल स्ट्रिप में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो वर्टिकल स्ट्रिप से मुझे पहले कौन सी लिमिट मिलेगी? किसकी लिमिट मिलेगी पहले? y की y लिमिट, square by 4. हाँ, तो ये जो कर्व था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा, उसमें से मुझे ये यहाँ पे टच कर रहा है। अब अपर साइड पे अगर आप देखेंगे तो अपर साइड पे ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, लेकिन यहाँ पे y पॉजिटिव है, इसलिए मेरी लिमिट्स हो जाएगी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4ax। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? गॉट इट? Yes, sir. ओके, अब x की लिमिट के लिए मुझे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये एंड ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए पहले मैं क्या करूंगा, दोनों जो दिया है उसको यहाँ पे लिखूंगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, एंड सेकंड जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ओके, अब इसमें से मैं y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। दैट मीन्स मेरे पास बचेगा x रेज़ टू 4 अपॉन 16 स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यस और नो? Yes. है ना। तो इसमें से मुझे मिलेगा x रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 64 a क्यूब इंटू x। एवरीबडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. So x raised to 4 minus 64 a cube into x is equal to 0। तो उसमें से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो x क्यूब माइनस 64 a क्यूब इज इक्वल टू 0 मिलेगा मुझे। 1 मिनट, हाँ यस ओके। अब x इज इक्वल टू 0 मिला, एंड दूसरा पार्ट आया मेरा x क्यूब माइनस 64 a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 64 ए क्यूब इज इक्वल टू 0 का दूसरा एक फैक्टर x माइनस 4a होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes. है ना। तो आपके पास दो वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4a। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 से मेरा y क्या हो जाएगा? क्या मिलेगा? 0। Yes, sir. Yes, yes. x इज इक्वल टू 4a से अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 4a रिप्लेस करेंगे तो 16 स्क्वायर होगा, उसको डिवाइड बाय 4a करो तो 4a आएगा। सो y इज इक्वल टू भी 4a ही होगा। तो ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे 0 0 एंड 4a। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ, देखो ये है मेरा 0 0 पॉइंट, एंड ये जो है वो मेरा 4a पॉइंट। ओके, सो यू कैन सी हियर व्हाट इज द लिमिट्स ऑफ x, क्या होगी अब? 0 से 4a तक। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, तो बस यही था हमको डिस्कस करना। अब वो सब कुछ यहाँ पे लिख देंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट आएगा वी वांट टू फाइंड द एरिया बिटवीन, थोड़ा स्प्लिट हो गया है, बिटवीन द पैराबोलास y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay. Now which formula will be applicable here? Anybody? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? अगर आपको देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ। ओके, चलो ये तीन में से कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगा मुझे बताओ। d by dx. 1 divided by d. A formula. फर्स्ट वन है ना, dy dx, क्योंकि आई कंसीडर वर्टिकल स्ट्रिप। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं तो यू हैव टू गो विद द सेकंड। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यू कैन सी हियर फर्स्ट फॉर्मूला इज डबल इंटीग्रेशन dy dx।
नाउ लिमिट्स ऑफ y मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है, x स्क्वायर बाय 4a टू root 4ax and value of x, so 0 to 4a. Is it okay everybody? Yeah. Yes. ओके अब यहाँ पे 0 to 4a में एज इट इज रखता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y x स्क्वायर बाय 4a टू स्क्वायर रूट 4ax dx हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 to 4a फर्स्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्क्वायर रूट 4ax माइनस x स्क्वायर अपॉन 4a ओके इनटू dx हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 4ax है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 0 to 4a हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 4a कर दिया, इसको मैं x रेज़ टू 1/2 बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes. एंड यहाँ पे x Yes. स्क्वायर अपॉन 4a एज इट इज रख रहा हूँ dx, तो सीधा हमारा इंटीग्रेशन हो जाए, इसलिए तो यहाँ पे सीधा इंटीग्रेशन करते हैं। चलो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4a उसको मैं 2 रूट a लिख सकता हूँ, तो 2 रूट a मैंने लिख दिया। x रेज़ टू 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 उसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस x क्यूब अपॉन 4a तो था इंटू 3 आएगा एंड यहाँ पे 0 to 4 है। इज इट ओके? Yes, sir. ओके नाउ वी गो फर्दर। सो यहाँ पे देखो 2 रूट a उसके लिए कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अब x की जगह पे मुझे 4a रिप्लेस करना था, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 4a रेज़ टू 1/2 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा डिवाइड बाय 3/2 माइनस यहाँ पे 4a क्यूब अपॉन 4 into 3 दैट मीन्स 12a एंड 0 पे तो दोनों में x प्रेजेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 रूट a इंटू अब 4 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर रेज़ टू 3 इंटू a 3/2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस 4 क्यूब इंटू a क्यूब डिवाइड बाय 4 into 3 into a। इज इट क्लियर? ये सही है कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड दिस Sir. स्टेप? हाँ यस Sir, यस बेटा। वो हाँ। 2 तो ये square पहले वाले raised to हाँ 3 हो जाएगा। 2 square 3/2 है। हाँ 3/2 आएगा, यस 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 यू आर राइट। 2 स्क्वायर रहेगा, 4 का 2 स्क्वायर किया, 3/2 एज इट इज रहेगा, यू आर राइट। ओके नाउ एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? No doubt, sir. ओके दैट मीन्स यहाँ पे देखो 2 रूट a, अब 3/2 में से 2 ऊपर चला जाएगा तो मैंने 2/3 कर दिया, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो 2 कैंसल, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 क्यूब इंटू यहाँ पे a रेज़ टू 3/2 मैंने एज इट इज रखा है माइनस, अब 4 क्यूब में से एक 4 कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4 स्क्वायर इंटू इस क्यूब में से एक a कैंसल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा a स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे 4 स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय 3 तो बचा ही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे देखो आप 2 into 2 4, 4 into 8 कितना हो जाएगा, 32 32/3। अब यहाँ पे a रूट a है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a रेज़ टू 1/2 प्लस यहाँ पे 3/2 तो था ही तो मैंने वो लिख दिया। अब 4 स्क्वायर मीन्स 16 a स्क्वायर बाय 3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 32/3 इंटू a रेज़ टू 4/2 तो स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर बाई 3, तो आपके पास बचेगा 2 नहीं सॉरी 2 नहीं 16 square by 3 16 स्क्वायर बाई 3 that is the required area of the given region. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? Anyone? No no doubt. sir Okay. So if you have no doubt, then we go for the third example. Find the area
common to the cardioids, r is equal to a1 minus cos theta and r is equal to a1 plus cos theta। तो पहले कॉमन रीजन ड्रॉ करने के लिए ट्राई करते हैं। चलो, तो यहाँ पे कॉमन रीजन कैसे आएगा वो पहले ड्रॉ करते हैं। ओके, ये मेरा थीटा इज इक्वल टू 0, ये हुआ पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई एंड ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। चलो, तो मैंने ड्रॉ किया। अब r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा कहाँ पे आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट साइड। सेकंड क्वाड्रेंट साइड पे आएगा, है ना, मींस यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा क्योंकि माइनस कॉस थीटा है। तो ये जो हार्ट शेप है वो ए से बनेगा। ओके, मैं इंक चेंज कर देता हूँ ताकि दोनों सेपरेट दिखाई दे। 1 मिनट। ओके, देखो इस हिसाब से मिलेगा। समझ लेना है कि इससे ये परफेक्ट ग्रो होगा कि नहीं, आई डोंट नो। यस, ओके, डन। तो ये हुआ आपका r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। यस और नो? Yes. यस सर। ओके, और सेकंड अब r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। मिरर इमेज होगा। हाँ, इसका मिरर इमेज मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो उसको ड्रॉ करेंगे तो इस हिसाब से मिलेगा। देखो ये हो जाएगा, सॉरी इसमें से पास होगा, हाँ, और ये भी नीचे इसी में से ही पास होगा। यस, डन। ये थोड़ा शॉर्ट बनाना पड़ेगा। Is it okay now, everybody? Got it? पता चला कि Yes, नहीं? sir. ओके, अब कॉमन रीजन हमको बोला है तो कॉमन रीजन ये हो जाएगा। देखो, दिस इज योर कॉमन रीजन, दोनों ही दोनों का। ये सुनो, तो यहाँ पे एक्चुअली है ये दोनों ही दोनों पार्ट सेम, जैसे सिमेट्रिक ही है। देखो आप अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर एक सर्कल और नीचे एक सर्कल, और दोनों ही दोनों सिमेट्रिक ही है, पूरा सिमेट्रिक रीजन। अंडरस्टैंड, है ना? तो किसी एक को टारगेट करके हम पूरे को फाइंड कर सकते हैं 4 टाइम्स करके, Yes, sir. है ना? तो उसके लिए हम ऑलवेज इसी को कंसीडर करते हैं ज्यादातर, है ना? तो उसी से हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बना दिया। चलो, ओके, रेडियस वेक्टर ये हो गया। सो रेडियस वेक्टर ये मिला, तो पहले r की लिमिट्स क्या होगी? यही, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, है ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है उसमें r की लिमिट क्या होगी? 0 to ओके, ये आई थिंक आप लोगों को दिख नहीं रहा है, ये कलर दिख नहीं रहा है ना? लाइक चेंज इट। नाइस। ओके ओके, 1 मिनट। अब ये दिख रहा है, बताना। यस, r इज इक्वल टू 0 टू, ये कौन सा कर्व है? ये equal to 4 into 1 minus cos Yes. 1 minus cos phi. a into 1 माइनस cos थीटा। ओके, सो r की लिमिट ये हो गई। अब थीटा की लिमिट क्या होगी? ये लाइन से स्टार्ट करता है वो, हाँ, यस, 0 to pi by 2. पाई बाई 2। वेरी गुड। और उसको हम क्या कर देंगे? 4 टाइम्स कर देंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एनी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। सर 2 टाइम करेंगे ना इसको? नहीं, 2 टाइम्स करेंगे तो सिर्फ ऊपर का मिलेगा। व्हाट अबाउट बॉटम, है ना? ओके, हम तो दोनों का हमको कंसीडर करना है ना, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ऐसे आएगा। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन ये चारों सेम है, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया है, देखो आप। ओके, हेलो सर, हाँ, बोलो बेटा। हम थीटा की लिमिट 0 to pi लेंगे तो 2 टाइम करना पड़ेगा ना? तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा। यस, यू आर राइट। ओके, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या प्रॉब्लम होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
स्प्लिट हो रहा है देखो, फिर आपका ये रेडियस वेक्टर है, इस साइड पे ड्रॉ करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा पे चला जाएगा। अंडरस्टैंड? आप देखो, यस सर। और है ना, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऐसे होगा डबल इंटीग्रेशन प्लस डबल इंटीग्रेशन, ऐसे करना पड़ेगा आपको, तो वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, यस सर। है ना। वो हम स्प्लिट रीजन स्प्लिट करने के लिए हमने पढ़ा था ना, एक एग्जांपल किया था ऐसे। यस सर, यस हाँ, सर। हाँ, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसलिए डोंट गो विद दैट, सीधा ही करो तो आपको जल्दी मिल जाएगा। सो एरिया, यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में, यहाँ पे फाइंड द एरिया कॉमन टू द cardioids r is equal to a1 minus cos theta and r is equal to a1 plus cos theta। ओके, इसके लिए मुझे फाइंड करना है। तो एरिया की फॉर्मूला मेरे कौन सा नंबर का यूज करूंगा मैं यहाँ पे, कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे एवरीबॉडी? आर डी आर डी। वेरी गुड, थर्ड नंबर। ओके, आर डी आर डी थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो यहाँ पे उसका हमने किया 4 टाइम्स हमको करना था, और आर की लिमिट हमने लिया 0 टू a 1 माइनस कॉस थीटा, एंड थीटा की लिमिट लिया मैंने 0 टू पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पे आपको मिला 4 0 टू पाई बाई 2। अब आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 0 टू a1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ओके, अब यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, सो वी हैव 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे आपको मिलेगा a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। यस और नो? Everybody, any problem up to here? नो सर। Okay, यहाँ No, पे sir. 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो गया हमारा, ओपन कर दिया मैंने उसको। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 एज इट इज, यहाँ पे मेरे पास है 1 माइनस 2 कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने लास्ट एग्जांपल में जो किया था 1 वही plus cos 2 theta by 2. cos 2 थीटा प्लस 1, यस वही का वही, cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, तो 2a स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस यहाँ पे साइन 2 थीटा बाई 2 इंटू 2 4, यहाँ पे थीटा बाई 2। नेक्स्ट यहाँ पे लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सो यहाँ पे लिमिट 0 टू पाई बाई 2, सो यहाँ पे 2a स्क्वायर, अब पहले थीटा की जगह पे पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 माइनस 2 साइन पाई बाई 2, आगे जो किया था वही का वही है, यहाँ पे सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस हो गया, साइन 2 इंटू पाई बाई 2 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू 2 पाई बाई 4 माइनस 0 पे तो ये 0 हो गया, तो 0 माइनस 2 इंटू साइन 0 माइनस साइन 0 बाई 4 एंड माइनस 0। ओके एवरीबॉडी, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से कैंसिल हो गए स्टेप, तो ये यू कैन सी हियर साइन पाई बाई 2 बचेगा, यहाँ पे साइन 2 2 कैंसिल होके पाई बचेगा, दैट मीन 0, यहाँ पे 0 है 0 है 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पे सिर्फ जो बाकी बचा है रिमेनिंग पार्ट्स यहाँ पे लिख देते हैं 2a स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 3 pi by 3 pi 4. by 4। वेरी गुड, सो 3 पाई बाई 4 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको एलसीएम ले लो तो आपको मिलेगा 2a स्क्वायर 3 पाई माइनस 8 बाई 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा a स्क्वायर बाई 2 इंटू 3 पाई माइनस 8।
So is there any problem, any question in this example? Anybody? I No want doubt. confirmation from all the students. Please confirm No, yourself. sir. No, sir. No, sir. Thank you for the confirmation. नेक्स्ट एग्जाम्पल तो बहुत ही सिंपल है. देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लेन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो जब भी स्टेटमेंट दिया है ना, तो फिगर ड्रॉ करने के बाद एक बार देख लेना कि वो क्या बताना चाहता है. अगर वो आप नहीं समझ पाए तो पूरा एरिया रॉन्ग फाइंड करके आएंगे. इसका तो आंसर भी आपको पता होना चाहिए. वाई ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ. देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वो तो फुल सर्कल है कि नहीं, Yes, sir. है ना. तो फुल सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अब फुल सर्कल का एरिया क्या होता है, यू नो वेरी वेल. व्हाट इज द एरिया ऑफ द फुल सर्कल? Pi r square. पाई आर स्क्वायर. वेरी गुड, वेरी गुड. सो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर की जगह पे ए बैठा है, इसलिए हमारा आंसर होगा पाई ए स्क्वायर. यस, Yes. ओके. Yes, अब sir. यहाँ पे मैंने बोला कि जब भी स्टेटमेंट दिया है तो रीड 2 टाइम्स. ओके, 2 टाइम्स आपको रीड करना है. मैं कंपलसरी बोल रहा हूँ सभी को. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, इसका इंटरप्रिटेशन निकालो. फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लेट, मींस एक प्लेट हम कंसीडर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेंट. अ क्वाड्रेंट लिखा हुआ है. अ क्वाड्रेंट मींस क्या हुआ? Single Only quadrant. one quadrant. एनी वन ऑफ द क्वाड्रेंट. अगर ये गलती कर दिया तो गए. तो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूँ, तो ये मेरा अब जो बोला गया है वो रीजन हुआ कि नहीं? यस और नो? Yes. अब आप कोई भी ले सकते हो, नॉट अ इश्यू, उसमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यहाँ पे एक ही क्वाड्रेंट का करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिवाइड बाय 4 कर देना है सीधा. यस और नो? Yes, sir. तो ये आपका आंसर आना चाहिए, है ना. अगर 2 रीजन बोला, मींस 2 यहाँ पे क्वाड्रेंट बोला होता तो डिवाइड बाय 2 करते हैं हम. गॉट इट? ओके. Yes, sir. चलो तो फाइंड करते हैं. यहाँ पे मुझे बताओ. चलो क्या होगा यहाँ पे? हाँ, वर्टिकल स्ट्रिप ले सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल. आगे हमने वर्टिकल से किया था ना, तो चलो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो वी टेक अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने ले लिया. तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा तो मुझे पहले किसकी लिमिट मिलेगी? DX. dx की नहीं, y की कहाँ से मिलेगी बेटा? हॉरिजॉन्टल मींस आपका ऑर्डर हुआ dx dy हुआ, है ना. तो यहाँ पे आपको पहले x की लिमिट मिलेगी. तो x इज इक्वल टू 0 है, y एक्सिस मींस, है ना. Yes, sir. और ये कहाँ पे टच कर रहा है? सर्कल पे. लेकिन यहाँ पे सर्कल से आप x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो प्लस और माइनस होगा, लेकिन x इज पॉजिटिव हियर, सो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव आपको लेना पड़ेगा. दैट इज द लिमिट ऑफ x. चलो y की लिमिट के बारे में सोचे तो y की लिमिट के लिए स्ट्रिप को खींच के ये लाइन पे लेके आएंगे. सो ये लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0. वेरी गुड. सो y इज इक्वल टू 0 से ये पॉइंट है आपका Y. 0a. तो आपकी y की Y लिमिट equal to 0 to a. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, तो चलो यहाँ पे Yes. स्टार्ट. हाँ, ओके, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल का सॉल्यूशन लिखने के लिए. सो वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ a plate in the form of a quadrant of a circle x square plus y square is equal to a square. Okay. Now therefore एरिया A is equal to डबल इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे मुझे कौन सी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? एनीबॉडी? DX dy. यस, ऑर्डर मेरा होगा dx dy. वेरी गुड. dx dy तो लिमिट होगी x की, हमने जैसे डिस्कस किया इसे 0 टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 टू
ए वाई के लिए, यस। हाँ, सो 0 to minus y square bonus. हाँ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, यस वो तो वाई की हो जाएगी, यस सॉरी, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट। 0 to a, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा 1 का x 0 to स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy हो जाएगा। सो यहाँ पे 0 to a, आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। यस और नो एवरीबॉडी? यस यस। अब इसकी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसकी फॉर्मूला क्या है? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था? a/2 minus नो, 1/2 x into under root a square minus x square plus 1/2 sin a, अरे 1/2 a square into sin inverse वेरी गुड। ओके, तो ये x था, by a. यस ये फॉर्मूला था कि नहीं? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड या फॉरगेट इट? डू यू अंडरस्टैंड? यस Yes, यस। sir. तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे y बैठा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम उसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको होगा y/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y/a and limit will be 0 to a. Is it okay? Yes, sir. यस सर। So first we substitute a. So a/2 square root a square minus a square plus a square by 2 sin inverse a/a minus 0 पे तो 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। So 0 minus a square by 2 into sin inverse 0. So again 0 के लिए तो sin inverse क्या हो जाएगा? 0। तो ये तो चला गया, ये भी चला गया। अब यहाँ पे इसके लिए सिर्फ हमको सोचना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू यहाँ पे साइन इनवर्स 1 5/2 क्या होगा? 5/2। वेरी गुड। सो ए स्क्वायर पाई बाय 4, यही तो हमको लाना था ना रेगुलर हिसाब से, है ना? हमने यहाँ डिस्कस कर ही लिया। देखो ए स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर बाय 4 होना चाहिए, क्योंकि हमको एक ही क्वाड्रेंट बोला था। अगर फुल होता तो हमारा पाई स्क्वायर आता, है ना? तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर बाय 4। सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस एग्जांपल? एनीबॉडी? सर यस यस बेटा, यस। हम एक्स वाई का सर आर डी आर डी थीटा ले ले तो भी हो जाएगा ना इजी इससे? आर डी या डी थीटा होगा तो फिर आपको आर की लिमिट निकालना पड़ेगा। तो आर की लिमिट क्या होगी उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू ए हो जाता। ओके, अंडरस्टैंड बेटा? Yes, sir. है ना? तो वो उसकी लिमिट होगी 0 टू ए, और फिर थीटा की होती है थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। गॉट इट? तो यही आंसर आपको मिलेगा। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको पता चल गया या अभी भी डाउट है? सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही फाइंड किया है। हाँ, नहीं मीन्स आप कोई भी क्वाड्रेंट ले सकते हो, लेकिन कोई एक क्वाड्रेंट लेना है तो हम ज्यादातर फर्स्ट ही लेते हैं ना, क्योंकि वी फैमिलियर विथ फर्स्ट क्वाड्रेंट इजीली, है ना? ओके, इसीलिए कोई भी क्वाड्रेंट ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम फैमिलियर ज्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसको हमने टारगेट किया। ओके, ओके सर। नाउ एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? और जिन्होंने वो पोलर फॉर्म के लिए बोला था उनको क्लियर हुआ कि नहीं? प्लीज रिप्लाई। No doubt, sir. ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन एनक्लोज्ड बाय द कार्डोइड r इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट एक बार देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये क्या हुआ? 1 मिनट स्टूडेंट।
यस ओके। हाँ, तो इसके लिए पहले सबसे पहले हम कार्डोइड ड्रॉ कर देते हैं। क्या है कार्डोइड? r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, मीन्स एक ही जगह पे 1 दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा कार्डोइड, गिवन कार्डोइड, क्योंकि पॉजिटिव साइड लेना था, 1 प्लस कॉस थीटा। यस और नो? यस सर। यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2। ओके, चलो ये हमने ले लिया रीजन। अब इसमें मुझे बताओ कि स्टेटमेंट पढ़ो एक बार और मुझे बताओ कि क्या करना क्या है। सर एरिया फाइंड करने का है, लेकिन रीजन का। फुल कार्डोइड है या फिर कुछ कट करना है हमको? नहीं, फुल ही है। फुल है। फुल कार्डोइड। फुल कार्डोइड है। ओके, कहीं पर भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का लो या फिर फर्स्ट एक ही पार्ट का लो, ऐसा भी नहीं दिया है। तो ये हमारा फुल के लिए हमको फाइंड करना है। चलो, ये फुल के लिए मुझे फाइंड करना है। ओके, चलो, गुड, वेरी गुड। अब इसमें सबसे पहले मैं रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो मेरा रेडियस वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, तो रेडियस वेक्टर के हिसाब से कहीं पर भी रेडियस वेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हो। तो उसकी लिमिट क्या होगी? r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाहर तो कहीं नहीं जा सकता है वो। ओके, अब थीटा की लिमिट के लिए यू कैन यूज 2 डिफरेंट टाइप्स। ओके, फर्स्ट क्या कर सकते हो आप कि इसको सिमेट्रिक ले लो, मीन्स आप इतना ही कंसीडर करो और उसको 2 टाइम्स कर दो। चलेगा कि नहीं? यस सर। है ना? या फिर पूरा ले लो, है ना, तो वो भी चलेगा, 0 टू 2 पाई। ओके, लेकिन हम 2 टाइम्स वाले से करेंगे तो कि आपको पता चले। तो यहाँ पे देखते हैं। चलो, नेक्स्ट में वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन एनक्लोज्ड बाय, आपकी 3-4 मिनट ज्यादा लूंगा, है ना? एनी प्रॉब्लम? कोई होगा प्रॉब्लम? नो सर, नो डाउट। ओके, r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो एरिया की कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे मुझे कंपलसरी यूज करना पड़ेगा? r dr d थीटा, है ना? तो r से हमारी लिमिट होगी 0 टू 1 प्लस कॉस थीटा, एंड थीटा की लिमिट मैंने बोला कि 2 टाइम्स करके मुझे लेना है, इसलिए 2 टाइम्स कर दिया, एंड 0 टू पाई। अदरवाइज यू हैव टू सिलेक्ट 0 टू 2 पाई फुल, है ना? ओके एवरीबॉडी? यस सर। है ना? तो यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन हो गया, 0 टू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा। सो 2 विल बी कैंसिल आउट, सो 0 टू पाई, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, सेकंड लिमिट 0 हो जाएगा, तो उसको मैंने एज इट इज रख दिया। ओके, 0 कंसिडर नहीं किया, सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसके लिए तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए, तो ये मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ। सो यू कैन सी हियर 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इज इट ओके? पता चल गया सबको? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने डायरेक्ट कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 रख दिया। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? यस सर। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 4, बहुत बार किया है इसका, तो प्लस थीटा बाई 2, एंड लिमिट है मेरा 0 टू पाई। सो फर्स्ट यू रिप्लेस पाई, सो पाई प्लस 2 साइन पाई प्लस साइन 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, एंड माइनस 0 पे ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो सभी 0 है, तो एक ही बार 0 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे साइन पाई भी 0 है, ये सुन लो, साइन पाई 0 होगा कि नहीं, है ना? तो ये साइन पाई 0 हो गया है, साइन 2 पाई भी 0 हो जाएगा। सो वी हैव ओनली पाई प्लस पाई बाई 2। सो पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2। सो यहाँ पे आपका फुल कार्डोइड का यहाँ पे आंसर आया 3 पाई बाई 2। ओके, अगर एक ही पार्ट के लिए बोलते तो क्या होता? मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं करते। 3 पाई बाई 4 4 होता है ना? आप जब भी आपको आधा पूछा गया तो उसको आधा करना है,
है ना, दैट मीन्स 3 पाई बाई 2 आपका फुल है, तो उसको आपको आधा करना है, दैट मीन्स 3 पाई बाई 2 बाई 2, दैट मीन्स 3 पाई बाई 4. Is it okay everybody? Yes, sir. Okay, so is there any doubt, any question in today's session? Anybody? No doubt. No, sir. Okay, so good day, take care.